Hello, children. How are you? I am Khalid Mahmood, teacher UPS Saridal. Today, we are going to study a chapter of your class 8th that is Physiography of India. जो है. We will discuss each and everything in detail and we will discuss the parts of the India, its neighboring countries, and the borders India जो है shares with other countries. This video is very much helpful and beneficial for the civil servant aspirant and all other competitive examiner. And everybody needs to understand the physiography and topography of India. So let's start. You may see here that India shares border with which countries. First of all, here is Pakistan. Pakistan shares border with India. Here is Afghanistan, northern side, and then China, Nepal, Bhutan, collectively known as CNB, China, Nepal, Bhutan. This is actually framework for to memorize things easily. And you may see here that this is the eastern part of the India, and Bangladesh is here. Bangladesh is actually enclave within India. Here is Myanmar, and here is Sri Lanka. Now, first of all, we will discuss that which country India shares the longest border. India shares the longest border with Bangladesh. Bangladesh. And which country India shared shortest border, that is Afghanistan. Here is the Afghanistan. India share करता है minimum border with Afghanistan. Now moving on, जो है श्रीलंका is separated from India through a Pak state, or Gulf of Mannar. Here is Pak state and here is Gulf of Mannar. Now we will discuss the states of India. Here is Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Dehradun, Punjab, Haryana, UP, Delhi. Here is Arunachal Pradesh, Gujarat, Rajasthan and many other states. यहाँ पे हम देखेंगे कि वेस्टर्न मोस्ट इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है, नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंदिरा कोल, एंड द साउथर्न मोस्ट part of India is known as Indira Point. This point is also known as Pygmalion Point भी कहते हैं इसको, Pygmalion Point. Western most side of India is called Gormota. Ghar Gormota. Gormota is in Gujarat. And easternmost part of India जो है Kabithu, KIBITH, Kabithu. This eastern side is actually located in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh. Now we will study that here is Malabar coast, and this is Coromandel coast. इंडिया की जो है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो है इसकी एक्सटेंशन जो है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है, इसकी एक्सटेंशन क्या है, 2933 किलोमीटर, एंड नॉर्थ टू साउथ जो है 3214 किलोमीटर जो है. तो यहाँ पे जो है मालाबार कोस्ट आता है, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है, ये जो है बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, एंड यहाँ पड़ता है इसको अरबियन सी. दिस इज कॉल्ड अरबियन सी, दिस इज Bay of Bengal.
तो इंडिया की जो लैंड फ्रंटियर्स जो है, लैंड फ्रंटियर्स मीन कि इंडिया जो है किस किस मुल्क के साथ कितनी बॉर्डर शेयर करता है। वो करता है इंडिया 15,200 किलोमीटर जो इंडिया शेयर करता है बॉर्डर्स विद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। एंड कोस्ट लाइन जो है इंडिया का, जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मीन यहाँ से लेकर अरबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार, ये वाला एरिया है। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली कोस्ट लाइन जो है, कोस्ट लाइन, एंड इट्स अबाउट 7516 किलोमीटर जो है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार जो है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है, निकोबार आइसलैंड। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर जो है, लॉन्गेस्ट रिवर इज गंगा, एंड largest in terms of volumes of the water is ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया के क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि बेस्ड ऑन दीज मैक्रो वेरिएशन जो है, बेस्ड ऑन दीज मैक्रो वेरिएशंस, इंडिया कैन बी डिवाइडेड into north. India can be divided into the following physiographic division जो है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितने इसके फिजिकल फीचर हैं। देयर आर इंडिया जो है बीन डिवाइडेड इन 6 फिजिकल फीचर्स जो है। एक सबसे पहले ये नॉर्थन माउंटेन्स जो हैं, नॉर्थन माउंटेन्स। उसके बाद यहाँ पे आता है नॉर्थन प्लेन्स आते हैं, ये पंजाब और हरियाणा प्लेन इसको कहते हैं, पंजाब एंड ये जो है यहाँ से क्या आता है, ये नॉर्थन माउंटेन्स एंड देन नॉर्थन प्लेन्स जो है, पंजाब और हरियाणा प्लेन जो है। उसके बाद ये आता है पेनिनसुलर प्लाटो जो यहाँ से अरावली विंध्या रेंज से स्ट्रेच होके आता है। उसके बाद इंडियन डिज़र्ट आता है जो राजस्थान में वगैरह और कुछ पार्ट जो है लद्दाख में भी आता है। एंड उसके बाद कोस्टल प्लेन आते हैं, ये जो कोस्ट वाले एरिया है ना, ये वाले दिस पार्ट। एंड उसके बाद आता है आइसलैंड्स, जो ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है, इसमें जो है मतलब इन 6 चीज़ों को जो है पूरी तरह से ये डिवाइड किया है इन्होंने। 6 चीज़ों ने इंडिया को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्थन माउंटेन्स जो है कहाँ पे आते हैं, जिसको हम हिमालयन माउंटेन कह सकते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल्ड मैनर में। Greater Himalayas. We have divided Himalayas into different sections. Kashmir or northwestern Himalayas. First आ गया कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयास जो है ये इट एक्चुअली कंप्राइजेस, इसमें कितने हैं, इट एक्चुअली कंप्राइजेस सीरीज ऑफ रेंज। इसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ रेंज हैं, जैसे कि कराकोरम,
लद्दाख और ज़ंस्कार जो है, ज़ंस्कार जिसको हम KLZ कह सकते हैं, एंड पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल, ये सब इसमें आता है। उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेटर हिमालयाज़ किसके लिए फेमस है। इसको हम ट्रांस हिमालयाज़ भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ में फेमस वैली जो है, यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज़ है, ये दिस पार्ट जो है ये ग्रेटर हिमालयाज़, इसके ऊपर जो है ये ग्रेटर हिमालयाज़ आते हैं। यहाँ से नीचे जो है पीर पंजाल आता है, पीर पंजाल, और इसके बीच में जो है हमारी खूबसूरत वादी कश्मीर वैली है, दिस इज़ कॉल्ड कश्मीर वैली, एंड दिस इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स डल लेक। यहाँ पे डल लेक है। इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर जो हैं इसमें, here you see here that there are some important glaciers. important glacier जो हैं बोल टोरो एंड सचन ग्लेशियर जो है, सचन glaciers are also found in this region. This valley is famous for Kreva, KERA, Krevas formation जो है, Krevas formation. Krevas जो है is actually conducive for ज़ैफ़रान। ज़ैफ़रान सबसे ज़्यादा कश्मीर में होता है, और ज़ैफ़रान के लिए ये जो है क्रेवास फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। इसकी मेन रीज़न क्या है कि क्रेवा एक्चुअली क्या होता है। क्रेवा एक ग्लेशियल जो ग्लेशियर है हमारे ये वाले बोल टोरो और सचन ग्लेशियर जो है, इनकी क्ले जो है यहाँ से जब आती है, थिक क्लेज इनकी आती है यहाँ से, ये इस रीजन में फॉल करते हैं, यहाँ से ये थिक लेयर जो है इनकी आती है यहाँ से, तो वो वहाँ पे कहाँ यहाँ पे क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, एंड अदर मटेरियल जितना भी होता है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये किसके लिए कंडूसिव है, ज़ैफ़रान कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंडूसिव है। एंड उसके बाद जो है इसमें हम देखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट पासेस जो है हम डिस्कस करेंगे, इसमें इम्पॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट पासेस इसमें हैं जैसे कि ज़ोजिला ये ग्रेट हिमालयज़ में आता है, ग्रेट हिमालयज़ में। उसके बाद जो है बनहाल, उसके बाद आता है फोतुला जो ज़ंस्कार में आता है, उसके बाद आता है खुर्दंगला ये किस में आता है, लद्दाख में आता है। ये इम्पॉर्टेंट पासेस किसके हैं, ग्रेट हिमालयज़ के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रेट हिमालयज़ की इम्पॉर्टेंट जो है लेक्स कौन सी हैं। इम्पॉर्टेंट लेक्स जो है इसमें एक डल एंड वुलर जो है ये इसकी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। और सॉल्ट वाटर लेक्स कौन सी हैं इसमें, ये फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं डल एंड वुलर। उसके बाद जो है सॉल्ट वाटर लेक्स कौन सी हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स इसमें एक तो पेंगोंग जो है, पेंगोंग जो लद्दाख में है, पेंगोंग TSO एंड TSO मोरीरी जो है ये सॉल्ट वाटर लेक है, यानी इसमें ज़्यादा नमकीन वाली मतलब इसकी सॉल्ट जो है ज़्यादा होता है इसमें। दिस रीजन इज़ ड्रेनड बाई रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ये वाला रीजन जो है हम इस रीजन को डिस्कस करें, ये पूरा रीजन जो है अभी फ़िलहाल हम इसको ग्रेट हिमालय इसको डिस्कस करेंगे। ये पूरा रीजन जो है इसको किसने ये जो पूरा जो है रीजन इसको ड्रेन कौन करता है, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज। इंडस बड़े मेन रिवर जो हैं सबसे बड़े, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र।
इंडस जो है, इंडस ये इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये क्या करती हैं, इस रीजन को, दिस रीजन जो है इसको क्या करती हैं, ये ड्रेन करती हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है, इसकी इंडस और झेलम, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी आती हैं, झेलम और चनाब, झेलम और चनाब जो है। उसके बाद जो है कश्मीर हिमालय इज़ नोन फॉर सीनिक ब्यूटी, ये जो है दिस इज़ नोन फॉर सीनिक ब्यूटी, इसमें बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं, पिक्चरस लैंडस्केप, बहुत ज़बरदस्त नज़ारे इसमें होते हैं। इसमें फेमस हम डिस्कस करेंगे, इसमें फेमस पिलग्रमेज कौन कौन सी हैं जो जहाँ पे मतलब लोग ज़ियारत करने या मतलब किसी इम्पोर्टेंट ये जो है सेक्रेट प्लेस जो है उस पर विज़िट करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी जगह है, एक तो है विष्णु देवी, विष्णु देवी है। उसके बाद इसमें अमरनाथ क्यों है, अमरनाथ क्यों जो है जहाँ पे अमरनाथ यात्रा वगैरह होती है। उसके बाद जो है चरार शरीफ जो है, चरार शरीफ जो है। उसके बाद जो है एंड हेयर इज़ द फेमस सिटी इज़ कॉल्ड श्रीनगर। यहाँ रिवर झेलम भी है एंड झेलम इज़ फेमस फॉर मेंढर्स, क्योंकि वो यहाँ से मेंढर्स करके मूवमेंट करता है इसलिए फेमस है उसी के लिए। उसके बाद हमने इसको ग्रेट हिमालयस को डिस्कस किया है। अब हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय को हम डिस्कस करेंगे। ग्रेट हिमालयस में को जिस हमने डिस्कस किया है वो पूरा जो है एंटायरली लाइज इन कश्मीर जो है। उसके बाद यहाँ पे ये पार्ट जो है, यहाँ पे हिमाचल हम यहाँ से दिखाएंगे आपको, ये जो है इस पार्ट को हमने डिफाइन किया है, ये पूरा दिस पार्ट एक्चुअली लाइज एंटायरली इन जम्मू एंड कश्मीर। अब हम सीधा मूविंग हेड हम डिस्कस करेंगे किसको, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। यहाँ पे है हिमाचल, हिमाचल जो है यहाँ पे है, और उत्तरांचल हिमालय हमने इस तरह से इसको डिफ़ाइन किया है। हिमालय सबसे पहले जब जम्मू कश्मीर में आता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, क्या पिलग्रमेज हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कौन सी इसमें माउंटेन्स हैं, कौन सी लेक्स हैं, कौन से पास हैं, वो सब हमने इसमें डिफ़ाइन किया है। अब जो ही ये आगे बढ़ता है यहाँ से ये कहाँ पहुँचता है, हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए इसको हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय कह सकते हैं हम। तो ये पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रवि रिवर से स्टार्ट होता है टू काली रिवर तक, रवि से काली तक, यहाँ तक ये जो है ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो है इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गगारा इन द ईस्ट। यहाँ पे काली जो है, काली एक्चुअली क्या है, रवि से स्टार्ट होता है काली तक। इसकी काली जो है ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी किसकी है, गगारा की। तो ड्रेनड दिस एरिया इज एक्चुअली ड्रेन्ड बाय टू मेजर रिवर, इंडस एंड गंगा जो है, इंडस और गंगा जो है वो इसको ड्रेन करता है। अब हम डिफाइन करेंगे कि इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं और गंगा की कौन सी हैं। इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी कहते हैं स्मॉल रिवर्स जो होता है, ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसके वो है रवि, ब्यास एंड सतलज, इंडस की। एंड गंगा जो है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यमुना, यमुना एंड गगारा, गगारा जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालयाज इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, लाइज इन स्पीति एंड लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो है। इसका जो है नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल, ये जो है हिमाचल हिमालयाज, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कोल्ड डिज़र्ट से स्टार्ट होता है, जो कहाँ पड़ता है, स्पीति और लाहौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। लेसर हिमालय नोन एज धुलिधर इन हिमाचल प्रदेश, ये लेसर हिमालय जो है, जब ये हिमाचल प्रदेश को हम डिफाइन कर रहे हैं, लेसर हिमालय जो है इसको क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, धुलिधर कहते हैं, धुलिधर, धुलिधर इन हिमाचल प्रदेश।
इसको क्या कहते हैं? ये सबसे पहले हमने पहले जो है ग्रेटर हिमालय डिस्कस किया, उसके बाद लेसर हिमालय जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयस भी कहते हैं, लेसर हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस लेसर हिमालय को क्या कहते हैं? धुलिधर कहते हैं, धुलिधर। और उत्तरांचल में इसको कहते हैं नाग तिब्बा, तिब्बा। दिस एरिया इज नॉन नाग तिब्बा इन उत्तरांचल, उत्तरांचल जो है। शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसमें जो है शिवालिक रेंज भी आता है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। अब हम शिवालिक को डिस्कस करेंगे। शिवालिक क्या है? शिवालिक जो है एक्चुअली, शिवालिक जो है, शिवालिक वर्ड जो है इसकी ओरिजिन जो है किसकी वजह से हुई है? एक प्लेस है देहरादून, देहरादून एक जगह है, देहरादून के नज़दीक एक जगह है, उसका नाम है सीवी, SIVA, सीवी वाला, सीवी वाला उसको कहते हैं। विच वॉज वंस ए हेड क्वार्टर ऑफ द इम्पीरियल सर्वे एंड विच सब्सिक्वेंटली एस्टेब्लिश इट्स परमानेंट हेड क्वार्टर एट देहरादून। सबसे पहले ये जो है देहरादून के नज़दीक एक जगह है, उसका नाम था सीवी वाला। ये सीवी वाला क्या था? ये एक बार इम्पीरियल सर्वे जो हुई थी, इम्पीरियल सर्वे का ये हेड क्वार्टर हुआ करता था। बाद में इसने क्या किया? अपना परमानेंट हेड क्वार्टर देहरादून में शिफ्ट कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये स्मॉलर लेसर हिमालयस में जो है इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन कौन कौन से हैं। एक तो इसमें आता है धर्मशाला, उसके बाद इसमें आता है मसूरी, उसके बाद आता है शिमला, उसके बाद आता है कसूरी, कसूरी एंड उसके बाद क्या आता है? हाँ, एंड दिस कंटोनमेंट एंड हेल्थ रिसोर्ट जो है शिमला, इसमें कौन कौन? शिमला, मसूरी, कसाली एंड अल्मोड़ा जो है ये हेल्थ रिसोर्ट में कंसिडर किए जाते हैं। लैंड्सडोने एंड रानी खेत जो है ये सब हेल्थ रिसोर्ट हैं। यहाँ पे जो है तमाम जितने इम्पोर्टेंट ये इन्वेस्टर होते हैं वो वहाँ पे विज़िट करते हैं। उसके बाद जो है डिस्टिंक्शिंग फीचर ऑफ दिस रीजन जो है शिवालिक एंड दून फॉर्मेशन। इसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट दून क्या है इसकी? इम्पोर्टेंट दून एक तो आ गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ एंड कलका दून, कलका दून। उसके बाद आ गया नालागढ़, नालागढ़ दून। उसके बाद आ गया देहरादून, देहरादून। देहरादून इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून। उसके बाद नाइक दून एंड कोटा दून। ग्रेटर हिमालयस में, ग्रेटर हिमालय रेंज में कौन कौन से प्लेसेस ऑफ जो पिलग्रमेज है, यहाँ पे कितने पिलग्रमेज जो आते हैं यहाँ पे, इस पे कौन कौन से हैं? एक तो गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकंड साहब जो है, हेमकंड साहिब। दिस रीजन इज आल्सो नोन एज द फेमस 5 फेमस प्रयाग रिवर जो है, 5 जो है 5 रिवर्स के लिए ये फेमस है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमालयस को हमने डिस्कस किया है। अब हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस की तरफ मूव करेंगे। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है यहाँ पे ये जो है ये दिस रीजन, ये जो रीजन है ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस है। दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयस। ये नेपाल हिमालय से यहाँ से स्टार्ट होता है, नेपाल से यहाँ से स्टार्ट होता है एंड टू भूटान हिमालय यहाँ तक है, यहाँ तक।
ठीक। उसके बाद small but significant part of the Himalaya is known for its fast flowing river such as तीस्ता। इसमें एक फास्ट फ्लोइंग रिवर आता है जिसका नाम है तीस्ता, ठीक है ना। तो रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजंगा, इसमें हाई माउंटेन रेंज आते हैं जैसे कि कंचनजंगा वगैरह। ये जो है कंचनजंगा, ये हाइस्ट माउंटेन जो है पीक्स हैं। इसमें जो है मिक्सड पॉपुलेशन है, जैसे नेपाली है, बंगालीज लोग हैं और ट्राइबल वगैरह दूसरे भी। ब्रिटिश ने जब हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था तो तब उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे सिक्किम वगैरह में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक ब्रिटिश टी प्लांटेशन जो है इस एरिया में इंट्रोड्यूस की थी, जिसको हम दोआ रीजन भी कह सकते हैं, दोआ रीजन कहते हैं जिसको। उसके बाद अरुणाचल हिमालयाज जो है, इसमें अरुणाचल हिमालय जो है ये स्ट्रेच होता है ईस्ट ऑफ भूटान। भूटान जो है भूटान के ईस्ट से स्टार्ट होता है यहाँ से और टू दीपू पास इन द ईस्ट, दीपू पास जो है ईस्ट तक, यहाँ तक ये स्टार्ट होता है। इसके इम्पॉर्टेंट पीक्स जो हैं कांगटू, नमचा बारवा, ये जो है एक तो कांगटू, दूसरा नमचा बारवा जो है, यू मे सी है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पीक्स। Brahmaputra, which is the most important river here, you may see that Brahmaputra. This river जो है flows through deep gorges, ये deep gorges से मतलब फ्लो करता है आफ्टर क्रॉसिंग नमचा बारवा। जो ही ये नमचा बारवा को यहाँ से क्रॉस करता है ये फ्लो करता है दूसरे एरिया में। इसके इम्पोर्टेंट रिवर जो है यहाँ पे केमिंग है, केमिंग, सुबानसिरी, केमिंग, सुबानसिरी, द दिहांग, दिबांग एंड लोहट जो है आर द इम्पोर्टेंट रिवर। एंड दिस एरिया इज़ वेरी कंड्यूसिव फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पोटेंशियल जो है, क्योंकि यहाँ पे रिवर जो है ये काफ़ी ज़्यादा है और इनकी वजह से क्या होता है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी जनरेट हो जाती है। तो मिनरल इथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ इनहेबिटिंग इन दिस सीरीज़, इसमें ज़्यादा ये जो है बहुत सारी इथनिक ट्राइबल कम्युनिटी जो है यहाँ पे रहती है। जो वेस्ट से ईस्ट तक अगर हम देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, एक तो यहाँ पे ये आता है मोम्पा, डफला, एबोर, मिशमी, निशी एंड नागाज, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है यहाँ पे रहती हैं। इनका काम क्या है, ये यहाँ पे कल्टीवेशन जो है, कौन सी कल्टीवेशन करती हैं ये, जूमिंग, इसको बोलते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन करते हैं। ये 6 जो है इथनिक ट्राइबल कम्युनिटी जो हैं जो इस एरिया में रहती हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे कल्टीवेशन किसकी करते हैं, जूमिंग, जिसको हम शिफ्टिंग स्लैश भी कहते हैं या बर्निंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स, यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। यहाँ से हिमालय हमने जिस स्टेट में फॉल करता है उसमें हमने उसके फिज़िकल फीचर जो हमने डिस्कस किए, और यहाँ पे ईस्टर्न हिल और माउंटेन्स पे हम पहुँच जाते हैं। पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है ये, दिस रीजन इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम हैविंग जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, यहाँ से लेकर साउथ की तरफ इसकी एक अलाइनमेंट है, सीधा चल रहा है। नोन बाय डिफरेंट नेम जो है, दिस एरिया इज़ एक्चुअली नोन बाय डिफरेंट नेम्स। इन द नॉर्थ में जो है इस साइड में जो है, नॉर्थ वाले साइड में इसको लोग क्या कहते हैं, पटकाए बम। हेयर यू मे सी हेयर दैट दिस इज़ द पटकाए बम, यहाँ पे लोग इसको क्या कहते हैं, पटकाए बम कहते हैं। एंड नागा हिल्स भी कहते हैं या मणिपुर हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इन द साउथ वाले साइड में जो है ये नॉर्थ वाला साइड है, एंड दिस जो है माइजो हिल्स, साउथ वाले साइड में इसको माइजो हिल्स भी कहते हैं और लुशाई हिल्स भी कहते हैं। ये एरिया जो है यहाँ पे भी ये जो है ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है, इथनिक ट्राइबल कम्युनिटी के लोग यहाँ भी रहते हैं और ये जूम की कल्टीवेशन करते हैं, जूम कल्टीवेशन। दिस पीपल जो है एक्चुअली डूइंग
झूम कल्टीवेशन, मोस्टली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो है ये एक दूसरे से अलग अलग है। बरक जो है, बरक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम जो है। ये मणिपुर, यू मे सी हियर दैट देयर इज द स्टेट विच इज़ लोकेटेड हियर, दैट दिस इज मणिपुर and the important feature, the most important lake of the Manipur is Loktak। Loktak जो है वहाँ पे एक फेमस लेक जो है। इन मिज़ोरम में किसकी वजह से फेमस है? मिज़ोरम जो है इसमें मोलेसेस बेसन बहुत सारे हैं, उसकी वजह से फेमस है। मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट जो है यहाँ पे वो किससे बना हुआ है? मोलासेस बेसन जो है अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट जो है वहाँ पे, उसकी वजह से ये बना हुआ है। सो फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो इंडिया में यहाँ से पास होता है,